see, I think. So not connected. We had completed performance appraisal methods, everything was done. And after that, I think these all terms you must be knowing before even. Have you heard about this halo effect? Now we are discussing all the problems with performance appraisal. Yes, we know that performance appraisal is done, but there are few drawbacks also. From rater's perspective, from rater's side. Okay, what happens that because of rater's perception, sometimes performance appraisal doesn't be corrected one. Okay, or there are a lot of flaws in it. परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या कई बार होता है कि कई बार कोई चीज के या परसेप्शन की वजह से रेटर खराब रेटिंग कर लेता है, वो हम लोग परफॉर्मेंस ज्यादा नहीं नापते हैं, बल्कि रेटर अपने परसेप्शन से भी रेटिंग कर लेता है. ऑलराइट, जिसमें नंबर 1 है हेलो इफेक्ट. हैव यू हर्ड व्हाट इज हेलो इफेक्ट? व्हाट इज दैट? एक positive characteristics, we are taking only one positive characteristics of a particular person and we are thinking that he is good in everything. This type of problem, if it is there, then it is halo effect. ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर रेटर के सामने हम इंप्रेशन बहुत अच्छा बना दिया, क्लास में बहुत अच्छा बोल रहे हैं, ठीक है, अब सामने रेटर सोच रहा है कि वो हर काम में ही अच्छा है, ठीक है, वो ग्रुप भी बहुत अच्छे से हैंडल करे, क्लास में अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है तो ग्रुप भी बहुत अच्छे से हैंडल करेगा, ठीक है. मान लीजिए कोई टास्क दे देंगे, वो टाइम पे कंप्लीट, मतलब डिपेंडेबिलिटी है, उसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं, ठीक है, यानी आदित्य आंसर देता है तो अब वो सब कुछ कर सकता है अकॉर्डिंग टू रेटर, ठीक है. तो इस टाइप का अगर परसेप्शन है तो दिस विल बी टर्म्ड एज हेलो इफेक्ट एंड दीज आर कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस, सो प्लीज बी केयरफुल. Where is your pen? Where is your notebook? So that is halo effect. How you will be writing? The keyword will be depending upon one positive characteristics. If we are assuming that the candidate is good, or we are rating accordingly just by watching one positive characteristics of a particular person, that will be termed as halo effect. Is that clear? Shall I proceed? Don't write complete sentence, Anurag, just keywords. Okay. Next one is horn effect, just opposite of hello. Hello, in hello what we did, we just watched the one of the positive characteristics, but in horn we just by one negative characteristics, like for example, again live example from your class, one day he just didn't talk properly, one negative characteristics, and in front of rater complete image was being destroyed. उसके आज वो कुछ भी अच्छा करे रेटर के अकॉर्डिंग वो खराब ही है, ठीक है. यानी अगेन ये वन ऑफ द एरर है कि अगर कोई एक दिन बहस कर लिया मतलब वो बच्चा खराब ही है, वो कुछ कर ही नहीं सकता. तो एक नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख लिए, रेटर ने एक नेगेटिव कैरेक्टर देखा, उसके वजह से कंप्लीट परफॉर्मेंस को ही खराब रेटिंग करना शुरू हो गया, ठीक है. तो इस टाइप का अगेन प्रॉब्लम हुआ या एरर हुआ, दैट विल बी टर्म्ड एज हॉर्न इफेक्ट, ठीक है. हेलो इज पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, horn is through one negative characteristics we are giving rating accordingly, right? Third one is leniency or strictness tendency or constant error. What do you mean by this? Leniency means what? Have you heard this term leniency? He is very lenient or he is very liberal. What do you mean by this? Liberal, I think this is common word, you must be knowing about this. What is that? No. बहुत ही ज्यादा छूट दिया गया है कोई चीज को लेकर के तो वो होता है लिबरल. तो अगर रेटर बहुत ज्यादा छूट दे रहे हैं, यानी आप उतना अच्छा लिखे भी नहीं है फिर भी मार्किंग अच्छा करके थोड़ा चलो पास हो जाएगा, बच्चा पास हो जाएगा कर करके अगर मार्क दे दिया जाए, दैट इज लिबरल मार्किंग. और अगेन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द, ये प्रॉब्लम हुआ किसके साइड से, या ये कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ किसका, रेटर का. वो रेटर लीनियंट है इसलिए लिबरल मार्किंग हो गया, एक्चुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पे मार्किंग नहीं हो रहा है, ठीक है. सेम वे स्ट्रिक्टनेस भी है. स्ट्रिक्टनेस मतलब जो रेटर है उसको हम किसी बच्चा को तो पास होने ही नहीं देते,
ठीक है, and strictly they are marking. This is what strictness tendency. So these are few errors in performance appraisal from the rater's perspective. रेटर साइड से ये सारा कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस अप्रेजल कई बार ऊपर नीचे हो जाता है और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पे रेटिंग नहीं हो पाता है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज सेंट्रल टेंडेंसी. नाउ व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी? You must have read in stats even. What is that? मिडिल टर्म कैलकुलेट करते हैं ना सेंट्रल टेंडेंसी. सेम थिंग कि हम लोग एवरेज मार्किंग पकड़ लिए, ठीक है, सबको मतलब एवरेज मार्किंग करके हम लोग निकाल देंगे. दिस इज अगेन एरर फ्रॉम रेटर्स पर्सपेक्टिव, राइट? It is the most commonly found error which occur when the rater assign most middle range score or value to all individual being appraised. राइट, एक एवरेज रेटिंग पकड़ ली और वही मार्किंग करना शुरू कर दिया, मतलब पासिंग मार्क दे देंगे भाई सबको. ओके, दिस इज व्हाट सेंट्रल टेंडेंसी. फर्स्ट इंप्रेशन, by word itself it is clear. First impression यानी first look में one was very nicely dressed, he was very good in speaking and all. I haven't seen how he works, I haven't gone through the routine which he follow, and just by saying first time one perception I have built and giving rating accordingly. So this is again one of the error. फर्स्ट इंप्रेशन. यहाँ भी तो हम लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं देखे. पहले परफॉर्मेंस में मीटिंग हुआ, भाई बहुत अच्छा बोलने वाला है, बहुत अच्छा ड्रेसिंग सेंस है, स्मार्टली प्रेजेंट किया अपने आप को, बस रेटिंग बढ़िया. डजंट मैटर वो बाकी दिन पूरा महीना कैसा काम किया, बस फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा था, मार्किंग इज डन. सो अगेन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एरर ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. नाउ स्टीरियोटाइप इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टर्म. व्हाट इज दिस? वी हैव टू ब्रेक दिस स्टीरियोटाइप. ये बहुत ज्यादा कॉमनली यूज टर्म है. किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को लेके सर्टेन परसेप्शन बना लेना. लाइक फॉर एग्जांपल, ओल्ड पीपल कांट बी स्ट्रांग, गर्ल्स कैन नॉट बी रेगुलर इन देयर जॉब, ठीक है, वुमेन कैन नॉट बी रेगुलर इन देयर जॉब. ये क्या स्टीरियोटाइप है कि हम किसी पर्टिकुलर कास्ट को लेकर के, पर्टिकुलर जेंडर को लेकर के, पर्टिकुलर एज ग्रुप को लेकर के, अब यंगस्टर हैं तो बदमाश होंगे ही होंगे, ठीक है, अक्सर रोड पे मिलेंगे ही मिलेंगे. तो ये क्या है, सारे यंगस्टर ऐसे ही होंगे? इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट इज नॉट नेसेसरी. ये क्या कर रहे हैं हम, कंप्लीट किसी एज ग्रुप को लेकर के या किसी एक कास्ट को लेकर के या किसी एक जेंडर को लेके अगर हम कोई परसेप्शन बनाते हैं, दैट विल बी टर्म्ड एज स्टीरियोटाइप. ठीक है, जो रेटर है वुमेन है, अरे ये क्या काम कर रही होगी, तो घर गृहस्थी के काम से फुर्सत नहीं होता होगा. दिस स्टीरियोटाइप इज वेरी मच कॉमन. यस, इसको हम लोग स्टीरियोटाइप कहते हैं, यानी किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को लेकर के जो टेंडेंसी रेटर बना लेते हैं, दैट इज स्टीरियोटाइप. एम आई क्लियर? दीज आर द कॉमन एरर. इसके अलावा जजमेंट एरर देखेंगे. जजमेंट एरर में किसी तरीके का पुअर डिसीजन अगर कोई ले ले, गलत डिसीजन अगर ले ले, राइट, जजमेंट एरर कहलाता है. फिर पुअर अप्रेजल फॉर्म ही अप्रोप्रिएटली नहीं स्ट्रक्चर हुआ है, देन दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मिस्टेक. लैक ऑफ रेटर प्रिपेयर्डनेस. अब अचानक से कोई बोल दे मैम वाइवा ले लीजिए सब्जेक्ट का, एग्जाम्पल, ठीक है, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड व्हाट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, एक महीना पहले पढ़ाए हुए थे कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अचानक से मेरा सब्जेक्ट है तो फिर भी अब मान लीजिए कुछ और सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाए. लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एरर फ्रॉम रेटर्स साइड. Then ineffective organizational policy and practice and resistance. So these are the resistance means what? Rukawat. Rater doesn't want, or he is not happy to rate anyone. He was not in mood to rate anyone. Okay, so that is resistance. मतलब कुछ काम करने के लिए तैयार नहीं होना या रुकावट आप बोल सकते हैं resistance को. ठीक है, we are not agreeing to do anything. So these are the common error in performance appraisal. लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आता है वो हेलो और हॉर्न से आता है. Stereotype can also be asked, but it is very much common. So not any of the competitive exam, you will hardly see these terms. But hello and horn you will be seeing everywhere, whether it is any competitive exam or you even in your assignment, you will see this. Okay, is it done, Bhaskar? Pakka?
What is stereotyping? Wait. I'm speaking both in English and Hindi. Then what's the problem? Say, Rohit. Try in English first. Say in Hindi only. Say Anurag, right? No, Pratyush. Yes. Good. इसको स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं. अभी तो मैंने एग्जांपल दिया कि हम एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में ऐसा सोचते हैं कि उस ग्रुप से कोई भी आदमी आएगा तो हम सोचेंगे वो आदमी भी वैसा ही होगा. जैसे भास्कर के ग्रुप में आप लोग अगर रह रहे हैं तो मेरे नजर में क्या होगा, पक्का ये लेकर के घूमता होगा आप लोग को भी. यस, आई एम जस्ट गेसिंग, आई एम नॉट श्योर, आई हैवंट सीन यू ऑन रोड और एनीथिंग, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल कि अब भास्कर को एक मान लीजिए घूमते हुए देख लिए, ठीक है, पिक्चर देख लिए, स्टेटस देख लिए, पक्का ये पूरे ग्रुप को लेके घूम रहा होगा. ठीक है, दिस इज व्हाट स्टीरियोटाइपिंग. या इस एज ग्रुप का सारा बच्चा ऐसा ही होता है. ठीक है, तो ये क्या हुआ, इस एज ग्रुप का बच्चा ऐसा ही होता है. तो उसमें भास्कर छोड़िए, आपके पीजीडीएम से कोई और मान लीजिए, कौन नहीं है अभी यहाँ पे, नहीं अभी यहाँ कौन नहीं है, सत्यम भी वैसा ही करता होगा. तो वो उसको तो हम देखे नहीं है, बस ये क्या कर रहे हैं, ग्रुप को लेकर के हम परसेप्शन बना लिए. तो ये क्या हुआ, स्टीरियोटाइप. और एग्जांपल दूं? क्लियर है? नहीं कर सकती है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो ज्यादातर वो अब्सेंटिज्म होगा वर्क प्लेस पे. तो अब जैसे इंटरव्यू देने के लिए आई, वो कैसा परफॉर्म करिए वो हम देख ही नहीं रहे. सिंपल मेरे दिमाग में ये बैठा हुआ है, ये तो रेगुलर रहेगी नहीं. ठीक है, अच्छा इंटरव्यू में पता चला ठीक है फैमिली है, राइट, एल्डरली पीपल आर आल्सो देयर, चाइल्ड, शी आल्सो हैव चाइल्ड, बस परसेप्शन बन गया कि यार अब तो ये रेगुलर रहने वाली है. डजंट मैटर हाउ शी परफॉर्म, डजंट मैटर व्हाट क्वालिफिकेशन शी होल्ड्स, परसेप्शन बन गया. तो ये क्या हुआ, ये तो एरर है ना, हम एक्चुअल परफॉर्मेंस तो देख नहीं रहे हैं उसका. नेक्स्ट, पोटेंशियल अप्रेजल. परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद एक नेक्स्ट टर्म मिलेगा आपको, पोटेंशियल अप्रेजल. क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल अप्रेजल एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल? एनीवन? Roughly we had discussed in a class. Roughly we had discussed while discussing performance appraisal, we had discussed about potential appraisal also. Yes, or you can say the future, in future what are the capability in that particular person. Performance मतलब क्या हुआ, अभी जैसा टास्क किया, ठीक है, समझिए ध्यान से, अभी जो काम किया उसके बेसिस पे जो आप कर रहे हैं वो है परफॉर्मेंस अप्रेजल. ओके, अब आपके अंदर भविष्य में उस पोजीशन को लेने का क्या क्वालिटी है. ठीक है, यानी फ्यूचर कैपेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर पर्सन विल बी जज्ड बाय potential appraisal and your current performance will be judged by performance appraisal. Yani task you have already done, and on that basis if I am doing, that is performance appraisal, and through that performance appraisal or through your performance, current performance, if I am judging about your future caliber or capability, then it is potential appraisal. Is it clear? Rohit, what's the difference between performance and potential? करेक्ट, क्या फ्यूचर, फ्यूचर कैपेबिलिटी एम्प्लॉय में, या क्या गुण है किसी एम्प्लॉय में, भविष्य में वो किस पोजीशन को होल्ड करने लायक है, वो चीज अगर हमको चेक करना है तो पोटेंशियल अप्रेजल कहलाएगा. और अभी जो परफॉर्मेंस आपका है वो अगर जज करना है तो हमको परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू करेंगे.
ठीक है, ये है मेजर डिफरेंस. इट इज ऑल्सो रिटन refers to the appraisal involving identification of the hidden talent and skills of a person. The person might or might not be aware of them. To express it in simple word, performance appraisal is an estimation of how an employee did, while potential appraisal is an estimation of how well he might do. ठीक है, कई बार देखिए टीचर्स लोग आपसे बात करते करते बोलेंगे तुम में बहुत पोटेंशियल है. इसका मतलब क्या है, आगे चल के बहुत अच्छा करोगे. तो आगे चल के करोगे, अभी आप किए नहीं है. ठीक है, वो बातचीत करके आपके आव भाव से पता चल जाता है कि आगे तुम क्या करने वाले. अंडरस्टूड. सेम हैपेंस इन ऑर्गेनाइजेशन इवन. उसके काम करने के तरीके से, उसके ग्रुप को हैंडल करने के तरीके से पता चलता है कि वो आगे चल के इसमें क्या पोटेंशियल है, क्या क्या कर सकता है. अंडरस्टूड. अब इसी में एक फेमस मॉडल है, पोटेंशियल अप्रेजल क्वालिटी डिटर्मिनेशन अकॉर्डिंग टू फिलिप्स मॉडल. ठीक है, फिलिप्स मॉडल का ये 2x2 मैट्रिक्स है. ये देखिए फिलिप्स मॉडल. इसी कैटेगरी में हम सारे एम्प्लॉयज को रखते हैं, राइट. प्लान सेपरेशन, सॉलिड सिटीजन, प्रॉब्लम चिल्ड्रन और यहाँ पे स्टार. बीसीजी मैट्रिक्स आप लोगों ने पढ़ा है अब तक या नहीं? नहीं, तो फिर आप लोग पढ़ेंगे 4th सेमेस्टर में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. समवॉट सिमिलर है यहाँ पे, बस नाम वहां पे चेंज होता है. ठीक है, यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल में ये पोटेंशियल अप्रेजल में ये फिलिप्स मॉडल यूज किया जाता है और सारे एम्प्लॉइज को हम इसी तरह प्लेस करते हैं. ठीक है, यहाँ पे प्लान सेपरेशन पहले देखिए किस किस कैटेगरी में आएगा प्लान. तो यहाँ देखिए पोटेंशियल इस रो में है, दिख रहा है पोटेंशियल. यहाँ दिख रहा है परफॉर्मेंस, दिख रहा है. अब यहाँ देखिए प्लान सेपरेशन, यानी एम्प्लॉय विथ लो पोटेंशियल, यानी भविष्य में करने लायक है नहीं और लो परफॉर्मेंस भी है. तो ऐसे एम्प्लॉय को आप क्या करेंगे, या पहले तो सजेस्ट करेंगे और अगर बहुत मौका देने के बाद भी अगर नहीं होता है तो नेम ओनली जस्टिफाइज प्लान सेपरेशन. आप इस ऑर्गेनाइजेशन के लायक नहीं है, ना आप परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं, ना भविष्य में करने लायक हैं. तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बोझा तो ढोती है नहीं. ठीक है, किसी को लाइबिलिटी तो अपने ऑर्गेनाइजेशन पे चाहिए नहीं, सब लोग एसेट खोजते हैं एम्प्लॉय के अंदर. तो ये क्या है, प्लान सेपरेशन, उसको हम इस कैटेगरी में डालते हैं. डन. अब आ जाइए सॉलिड सिटीजन. अब ये सॉलिड सिटीजन हो गया यहाँ पे. ठीक है, यानी देखिए पोटेंशियल यहाँ पे लो है और हाई क्या है, परफॉर्मेंस. देख रहे हैं, पोटेंशियल लो है और हाई है परफॉर्मेंस. अब यहाँ पे देखिए जनरली, अब आप लोग ऑर्गेनाइजेशन में अगर जाएंगे तो जनरली किस कैटेगरी में आप लोग बिलोंग करेंगे? 70 to 75% ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं. देखिए एम्प्लॉयज विथ लो पोटेंशियल, क्योंकि आगे अभी हमारा फोकस क्लियर है ही नहीं. अभी अभी हम ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किए, ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, तो अभी पोटेंशियल ज्यादा हम शो कर पाएंगे नहीं. लेकिन हाँ, जो टास्क अभी आप दे रहे हैं वो टास्क हम कर पा रहे हैं, यानी हाई परफॉर्मेंस. ठीक है, तो ऐसे सिटीजन को हम लोग कहते हैं सॉलिड सिटीजन. एंड फिलिप्स रिकॉग्नाइज देयर लिमिटेशन एंड टेक केयर देयर नीड. ठीक है, जितना लिमिटेशन है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी जो टास्क दिया जा रहा है वो तो कर पा रहा है ना. यस, तो उसको बेसिकली ट्रेन किया जाता है. ये आ गया आपका सॉलिड सिटीजन. ठीक है, सबसे ज्यादा रेशियो सॉलिड सिटीजन की कैटेगरी में ही रहता है. डन. नाउ स्विच टू प्रॉब्लम चिल्ड्रन. अब ये प्रॉब्लम चिल्ड्रन आ गया कहाँ है, यहाँ पे. यानी पोटेंशियल तो पूरा है, यहाँ पे देखिए ये मैट्रिक्स, पोटेंशियल तो पूरा हाई है लेकिन ये परफॉर्मेंस के नाम पे यहाँ पे लो है. ठीक है, यानी करने लायक तो बहुत कुछ है लेकिन डंडा देना होगा. ठीक है, ये हो गया आपका प्रॉब्लम चिल्ड्रन. ये ऐसे लोग क्या करते हैं, बॉस के सामने तो बहुत अच्छा शो करते हैं. ठीक है, लेकिन एक्चुअल में समझिए कामचोर टाइप है, पोटेंशियल लेकिन करेंगे नहीं. ये एटीट्यूड वाले लोग, तो इनको भी, हाँ इनको भी थोड़ा बहुत चेंजेस करके देखा जाता है. तो इनको इम्प्रूव ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली नहीं निकालती है, या तो लोकेशन चेंज करके देखा जाएगा या तो सर्टेन चेंजेस करके देखा जाएगा. इफ दे विल इम्प्रूव देन वेल एंड गुड, इफ नॉट दैट मीन्स दे आर knowingly doing all these things. So again, liability, you are not required in this organization. Okay, and now at last the best slot of all is your stars. Everything high,
high potential, high performance. Now also he is performing very nicely, and in future also capability is seen that he will be good person to handle that position, handle higher position. Okay, so that will be under star category. So this is the matrix through which Phillips tried to make us understand that how this potential is being judged, right? So this will come under the category of potential appraisal high-low matrix, 2:2 matrix. So if this question will be asked, obviously in internal exam, I think you are capable to write it. It is a 2:2 matrix given by Phillips, and this indicate that which employee comes in which category. So here is the graph. You need to draw this matrix and then explain one by one accordingly, right? Is it difficult? Fine. Let's proceed now. Requirement of potential appraisal. This is the last section. This is again common sense type question, that what are the requirement, means how to judge that yes, that person have potential or not, or any employee, how to indulge potential in any employees. Okay, for this first one is inform employee about their future prospect. मतलब तुम ये काम कर रहे हो, अगर ये टारगेट पूरा करते हो तो इस पोजीशन पे तुमको पहुंचना है या तुम पहुंच जाओगे. दैट मीन्स व्हाट, कि आपको हायरार्की में जो जो पोजीशन है उसके बारे में आपको बताना होगा, तभी तो एम्प्लॉय कर पाएंगे ये सारा काम, है कि नहीं? आप जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, इंटर करते हैं, तो आपको बताया जाएगा कि ठीक है 6 महीने में टारगेट पूरा करोगे तो इस पोजीशन पे रहोगे, फिर पूरा करोगे तो पीओ के पोस्ट पे रहोगे, 1 साल में तुम अच्छा कर लेते हो तो डीबीएम का पोस्ट मिलेगा, ठीक है, इतना टारगेट कर लेते हो तो तुम बीएम बन जाओगे, ठीक है. तो ये सब क्या है, हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से, मतलब भविष्य में क्या क्या आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ताकि एम्प्लॉइज फोकस्ड रहे, मोटिवेटेड रहे. ओके, अंडरस्टूड. Next requirement is help organization to chalk out succession plan. What is succession plan? Succession plan we have already discussed. No one? What is succession planning? We have discussed this thing, you remember or not? पढ़ चुके हैं हम लोग, ये याद है? ये भी याद नहीं है. फ्यूचर में चल के कौन सा सीट वैकेंट होने वाला है, ठीक है, ये 65 इयर्स के हो चुके हैं, ठीक है, या 6 महीने के बाद 65 इयर्स के हो जाएंगे जो हमारे वाइस चांसलर हैं, तो अब वो सीट वैकेंट होने वाला है, ठीक है. तो ऑर्गेनाइजेशन को चॉक डाउन करना होता है, यानी प्लान करना होता है कि आपके भविष्य में कौन कौन सा सीट वैकेंट होने वाला है. तो बीइंग द एम्प्लॉयर, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप एम्प्लॉय को भी कन्वे करें कि अरे ये वाला सीट खाली होने वाला है, अगर तुम ऐसा कर लेते हो या अगर ऐसा परफॉर्मेंस रहता है देन यू विल बी इन दैट पोजीशन. क्या है ये? सक्सेशन प्लानिंग. अंडरस्टूड? वी हैव नॉट डिस्कस्ड आदित्य. चलो, नेक्स्ट वन इज टाइम टू टाइम अपडेशन ऑफ ट्रेनिंग एफर्ट. ठीक है, कब कौन से पोजीशन पे, अब जैसे टेक्निकल चीज कुछ भी इंट्रोड्यूस हो गया, देन अगेन ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, अकॉर्डिंगली आपको ट्रेनिंग देना है. लास्ट वन इज एडवाइस एम्प्लॉय टू इम्प्रूव देयर करियर प्रोस्पेक्ट्स. आप एम्प्लॉय को एडवाइस करिए कि अपना कैसे हायरार्की में कैसे कैसे स्विच करना है, उसके लिए आपके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, एडवाइस कर रहे हैं. तो दीज आर द रिक्वायरमेंट ऑफ पोटेंशियल अप्रेजल. तो पोटेंशियल अप्रेजल ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयर ही बस सोचता है, उसी को सोचना या हिडन वे में वो जज करेगा, नहीं. आप जितने लोगों को बताइएगा क्या क्या है अपॉर्चुनिटी, तो बहुत लोग जो बैठने वाले हैं वो भी मोटिवेटेड हो जाएंगे और वो भी उसको अचीव, क्योंकि देखिए एवरी वन थिंक टू गो टू हायर पोजीशन, ठीक है, लेकिन बहुत को क्या होता है, विजिबिलिटी क्लियर नहीं होती है,
ठीक है, कैसे जाना है क्लियर नहीं होता, फोकस नहीं होते, तो उन लोग को भी फोकस करने का ये तरीका होता है कि आप बताइए, बात करिए एम्प्लॉय से कि यही अपॉर्चुनिटी इस ऑर्गेनाइजेशन में है और आप कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, थ्रू दिस प्रोसेस वी कैन इम्प्रूव द potential of any of the employee in the organization. So done with your performance appraisal chapter. We will be starting job evaluation in a next class. But I think we can start now.